Good afternoon, students. In the chapter first, that is some basic concept of chemistry. Today we are going to discuss about the concentration terms. Okay, students. Earlier to this, we have seen that how the empirical formula or molecular formula of a substance can be identified. We have also discussed about the stoichiometry, okay, of the reaction. Now we are going to discuss about concentration terms. Students, why this topic is important? Because generally what happens, a majority of reaction in laboratories are carried out in solutions. Okay, so whenever we are talking about a solution, so it is important to understand how the amount of substance is expressed in the sense of solution. Okay, suppose we are saying that there is a solution of B, okay, and we have added A to it. This is the solution of a B compound and we have added A. So what is the amount of A to be added, and what are the total volume of AB, whatever the consequences are, what is the moles of A, what is the mole fraction of A, what is the mass of B to A. So about the data of these things, or about getting the criteria about them, we are going to study about the concentration terms. Okay, so students, let's begin. स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, हमारे सिलेबस में बेसिकली 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. द फर्स्ट वन इज़ मास परसेंट. सबसे पहला है मास परसेंट, जिसे हम वेट परसेंट भी कहते हैं. द सेकेंड वन इज़ मोल फ्रैक्शन. दूसरा है मोल फ्रैक्शन. द थर्ड वन इज़ मोलैरिटी. तीसरा है मोलैरिटी. एंड द फोर्थ वन इज़ मोलैलिटी. और चौथा है मोलैलिटी. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्हीं सारे टर्म्स को पढ़ेंगे. बेसिकली हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार सॉल्यूशंस में ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है या कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस किया गया है सॉल्यूशन में, वो चीज़ों को जानने के लिए हमें ये टर्म्स पढ़ने हैं. ठीक है, सपोज़ करिए कि हमने आपसे कहा कि एक सॉल्यूशन है वाटर का. ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी कंपोनेंट हैं. बी कंपोनेंट क्या है? बी कंपोनेंट वाटर है. और ए कंपोनेंट क्या है? सपोज़ करिए ए कंपोनेंट आपका शुगर ही है. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज देयर आर 2 कंपोनेंट, सो इफ़ somebody ask you that what is the moles of sugar, so for this we have to calculate the mole fraction. Okay, and suppose somebody ask you what is the mass of the solution, so for that also we need some concentration terms which are listed here, like mass percent, like mole fraction, like molarity and like molality. So students, you have to look for the terms. आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में, मतलब बेसिकली इससे न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अगर वो मोल्स के बारे में पूछ रहा है तो हम मोल फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे. अगर वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट सॉल्यूशन, तब हम मोलैरिटी की बात करेंगे. सो ऐसे हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ मास परसेंट. स्टूडेंट, यहाँ वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारे 2 कंपोनेंट होंगे या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, उनकी हम मास की बात करेंगे. बेसिकली उनके वेट की बात की जाएगी. सो कभी भी अगर हमें मास परसेंट निकालना है, whenever we are going to obtain mass percent, the formula is given by mass percent is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक फॉर्मूला होता है मास परसेंट आइडेंटिफाई करने के लिए. वी आर राइटिंग योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो स्टूडेंट, यू ऑल नो दैट इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ सॉल्यूशन, then a solution is formed by having solute which is present in lesser quantity and solvent which is present in higher quantity. कोई भी सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है. एक होता है सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में होता है, एक होता है सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है. और ये दोनों कंबाइन करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. ये दोनों कंबाइन करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स,
let us see some questions related to this. So suppose there is a question that a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. What is the question asking? Question is saying that there is basically 18 gram of water, okay, and it is said that a solution is prepared by adding 2 gram of substance. So here we are adding 2 gram of substance, so we are assuming it as A and we are assuming water as B, and the question is calculate the mass percent of the solute. So you have to calculate the mass percent of solute. तो solute हमारा A है और हमने अभी देखा मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास. तो सॉल्यूट का मास 2 ग्राम है और हमारे सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट मतलब A प्लस सॉल्वेंट मतलब B. सो वी विल ऐड A एंड B, दैट इज 2 ग्राम एंड 18 ग्राम, सो इट विल बिकेम 20, ओके, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट टू 100. Then we can see that this is the basic way through which we can calculate this type of numerical. So basically answer will be 10%. What I am saying, students, you can see here clearly. Suppose it is asked that give the mass percent of A. हमें A का मास परसेंट बताना है. तो हमने फॉर्मूला देखा कि A का मास परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो हमने देखा A का मास क्या है 2 ग्राम अपॉन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, तो उसे हम ऐड कर देंगे 2 + 18, दैट विल बिकम 20 × 100, ओके, एंड फाइनली द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट A विल बी 10%, ओके. नाउ स्टूडेंट्स द सेकेंड टर्म इज मोल फ्रैक्शन. अब हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन. Talking about mole fraction, students, what happens whenever we are talking about mole fraction, we are talking about moles, fraction of mole, okay. यहाँ पे भी students, यहाँ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इंटू 100 नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए फिर से वही कंडीशन कि हमने बोला, लेट मी चेंज द कलर. अगर हम कहते हैं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है A और एक कंपोनेंट है B, ठीक है, और जब हमने मोल्स की बात की है तो A को हम Na के रूप में प्रेजेंट करेंगे और B को हम Nb के रूप में प्रेजेंट करेंगे, ओके. एंड स्टूडेंट्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, देन वी कैन से दैट इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा Na मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन NB, सॉरी मोल्स ऑफ A अपॉन NB प्लस Na, मोल्स ऑफ B and A मतलब सॉल्यूशन के मोल्स अपॉन सॉल्यूट के मोल्स, ओके. You can see here students what basically you have to do. And also if we have to calculate the mole fraction of B, suppose करिए स्टूडेंट हमें B का मोल फ्रैक्शन निकालना है और स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से. तो जब हमें B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे XB और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, B के मोल्स को रेशियो होगा मोल्स ऑफ B टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस moles of B, okay. So in this way we will identify, so student हम लोग इस वे में आइडेंटिफाई करेंगे मोल्स को. सो बेसिकली डिफाइनिंग मोल्स, अगर हम मोल्स को डिफाइन करते हैं तो ये होते क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. ये बेसिकली क्या है, जिस कंपोनेंट के बारे में हमें जानना है उस कंपोनेंट का रेशियो है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, ओके. मतलब अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट A 2 मोल में प्रेजेंट है, ओके, और कंपोनेंट A कितना है 2 मोल में है और कंपोनेंट B अगर हमारा 18 मोल में है, ओके स्टूडेंट्स. सो मोल फ्रैक्शन A का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/2 + 18, ओके, दैट इज़
2/20. You can also understood this by having an example. So here the question is, a solution has 1.43 mole of vanadium oxide. एक solution है जिसमें 1.43 mole of vanadium oxide है. So suppose students A as 1.43 mole, okay, and 3.4 by mole of chloroform. So B will be equal to 3.45 mole. B कितना है? 3.45 मोल है. What is the mole fraction of each component? अब हमें क्या करना है? दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है. So स्टूडेंट्स, ये दोनों मोल्स हैं Na और Nb. हमें क्या निकालना है? XA. What we have to calculate is XA. So XA will be basically 1.43 by 1.43 plus 3.45. Okay, this is the calculation for A component, that is vanadium oxide. So mole fraction of vanadium oxide will be equal to 0.293. Okay, now students, we have to calculate mole fraction of B. So mole fraction of B will be equal to NB upon Na plus Nb. So students, it will be directly 3.45. Let me draw here. XB is equal to 3.45 upon, XB will be equal to 3.45 upon 3.45 plus 1.43. Okay, and this will be equal to 0.707. Okay, so in this manner you have to calculate these type of problems. Students, two were left, that is molarity and molality. We will discuss later about molarity and molarity. Until then, try to solve more and more questions related to concentration terms like mass percent, like mole fraction. Thank you.